Exercise number 8.3, question number 1 is, tell what is the profit or loss in the following transaction. Also find profit percent or loss percent in each case. So here total 4 transactions are given. So on the basis of given situation, given case, we have to find out whether profit and loss occur. एंड देन आफ्टर अगर प्रॉफिट हुआ है तो या तो लॉस हुआ है तो दोनों केस में उसके इंडिविजुअल प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट कितने होंगे दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो फर्स्ट केस इज गार्डनिंग शेयर बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325. सो हियर इन दिस केस कॉस्ट प्राइस विल बी रुपीज, कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹250 एंड सेलिंग प्राइस दैट इज गिवन as ₹325. Okay, so यहाँ पे as we can see clearly selling price is greater than the cost price. So in this case we can clearly say that profit will be occurred. So here we write down there is profit. So now write down the formula of profit. Profit equals to selling price minus cost price. So what is selling price? Selling price equals to ₹325 minus cost price that is equals to ₹250. So 325 minus 250 equals to ₹75. So here we get the profit amount that is ₹75. Now we have to calculate the profit percentage. तो वो कैसे करेंगे? So write down the formula for profit percent. So profit percent इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. नाउ प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट इज 75 अपॉन कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है? 250. सो अपॉन 250 इनटू 100. सो अभी कट कर लें, यहाँ 0 से 0, 0 से 0 कट. 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10. देन यहाँ से 5 5 ज़ा 5 एंड 15 5 ज़ा 75. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 15 इंटू 2. सो 15 इंटू 2 इक्वल्स टू 30. सो दैट मीन्स कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 30%. सो इन लास्ट वी राइट डाउन देयर इज 30% प्रॉफिट. So this is about the case number 1. अभी second case है, a refrigerator bought for ₹12,000 and sold at ₹13,500. So firstly we write down what is the cost price. Cost price equals to ₹12,000 and selling price equals to ₹13,500. Now here again we can see that selling price is greater than the cost price. So here we write down selling price is greater than cost price. That is why we write down there is profit. So यहाँ पे profit का formula क्या हो जाएगा? Profit equals to selling price minus cost price. सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस इज ₹13,500 माइनस ₹12,000. सो यहाँ पे ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वी गेट द आंसर ₹1,500. सो दैट मीन्स कि प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा ₹1,500. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट. सो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट percent equals to profit upon cost price into 100. So यहाँ पे profit कितना हुआ है? Profit हुआ है यहाँ पे 1500. So here 1500 upon cost price कितनी है? Cost price is 12,000. So denominator में हो जाएगा 12,000 into 100 as it is. Now क्रॉस करें तो 0000 क्रॉस, यहाँ पे सिंगल ज़ीरो क्रॉस, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या है? ओनली 150. सो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 150
50%. सो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, देयर इज 150% प्रॉफिट. C is a cupboard bought for rupees 2500 and sold at rupees 3000. सो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू ₹2500 एंड सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू ₹3000. So यहाँ पे again we can see selling price is greater than the cost price. So here we write down selling price is greater than cost price. So that is why यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा profit. So यहाँ पे हम लिखेंगे there is profit. Now write down the formula for profit. Profit equals to selling price minus cost price. Now selling price कितनी है, selling price equals to ₹3000 minus ₹2500. So सब्ट्रैक्शन करेंगे 3000 में से 2500 का, तो आंसर क्या हमें मिलेगा 500. सो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, ₹500. Now we have to find out the profit percent. So write down the formula for profit percent. Profit percent equals to profit upon cost price into 100. Now profit कितना हुआ है 500. So profit 500. Cost price कितना है, cost price is 2500 into 100 as it is. So यहाँ पे क्रॉस करेंगे, 0 0 0 0 0 क्रॉस हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 25 और यहाँ पे 25 ज़ा 100. तो यहाँ पे हमको आंसर क्या मिल गया 20. सो यहाँ पे हो गया 20%. सो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे therefore there is 20% profit. Now situation D, वो है a skirt bought for ₹250 and sold at ₹150. So यहाँ पे cost price given है, that is ₹250 and selling price given है, that is ₹150. So here we can see cost price is greater than selling price. यहाँ पे उल्टा हो गया है, यहाँ पे है cost price greater than selling price. तो जब भी cost price बड़ा होगा selling price से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो केस में लॉस होगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे there is loss because ultimately here in this transaction gross price is greater than the selling price. Now write down the formula for loss. Loss equals to cost price minus selling price. Cost price कितनी है, ₹250 minus selling price कितनी है, ₹150. So 250 minus 150 तो हो जाएगा ₹100. So that means कि यहाँ पे लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 100 का. Now we have to find out the loss percentage as well. So write down the formula for loss percent. Loss percent equals to loss upon cost price into 100. Now यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों के केस में फॉर्मूला में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. अगर लॉस परसेंट का फॉर्मूला होगा तो यहाँ पे लॉस आएगा, अगर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा. बाकी का जो डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस और इनटू 100 है वो तो सेम ही रहेगा, राइट. सो यहाँ पे हो जाएगा लॉस कितना हुआ है 100. सो यहाँ पे 100 अपॉन 250 इनटू हियर 100. सो यहाँ पे 0 से 0 क्रॉस हो गया, देन यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 5
सॉरी, यहाँ पे हम 10 एज इट इज़ रखते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस कर लेते हैं। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। सो यहाँ पे है 10 एज इट इज़ और यहाँ पे है 4। सो 10 इंटू 4 इक्वल्स टू 40%। सो दैट मीन्स कि लॉस कितना हुआ है 40%। सो इन लास्ट वी राइट डाउन therefore there is 40% loss. Question number 2 is convert each part of the ratio to percentage. So here total 4 parts of ratio is given and we have to convert this ratio into percentage form. So first one is 3:1. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले ऐड कर देंगे। सो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे टोटल कितने पार्ट्स हैं। सो हियर वी राइट डाउन द फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इक्वल्स टू 3 + 1। टोटल कितना हो जाएगा, ये दोनों का एडिशन। सो यहाँ पे 3 + 1 इक्वल्स टू 4। नाउ अब हम इंडिविजुअली फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का परसेंटेज है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसके पहले हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशियो इक्वल्स टू फर्स्ट पार्ट बताया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में कितना है 3, तो हो जाएगा 3 अपॉन डिनोमिनेटर में टोटल कितना है, हमेशा याद रखना है डिनोमिनेटर में हमारा टोटल पोर्शन आएगा। तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4, न्यूमिनेटर में जो गिवन है हमारा पार्ट का पोर्शन वो, और डिनोमिनेटर में जो टोटल काउंट है वो। नाउ लेट्स फाइंड आउट द परसेंटेज। सो देयरफॉर इट्स परसेंटेज इक्वल्स टू, परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे 3/4 और इसका परसेंट निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे 25 4 ज़ा 100। नाउ 25 इंटू 3, सो 25 इंटू 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 75%। सो दैट मीन्स कि फर्स्ट का परसेंटेज कितना हो जाएगा, फर्स्ट जो 3 रेशियो गिवन है उसका हो जाएगा 75%। सिमिलरली हमको सेकंड के लिए भी फाइंड आउट करना है, तो यही स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ दी, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट था, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट ऑफ दी रेशियो इक्वल्स टू, अभी सेकंड पार्ट में प्रपोर्शन कितना गिवन है 1 अपॉन टोटल कितना है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। नाउ लेट्स फाइंड आउट इट्स परसेंटेज। सो देयरफॉर इट्स परसेंटेज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3/4 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 100। Now 1/4 into 100, 4 1 ज़ा 4, 25 4 ज़ा 100 and 25 into 1 equals to 25%. So that means कि यहाँ पे जो proportion में 1 given है that is equals to 25%. So this is about the first part. Let's move on the second part, part B. Part B में हमारे पास 3 बार given है, 3 रेशियो गिवन है, 3 के प्रपोर्शन में गिवन है 2:3:5। सो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे टोटल में क्या करेंगे अगेन ये तीनों का सम कर देंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3 + 5। सो 2 + 3 + 5 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 10। सो यहाँ पे टोटल काउंट हो गया 10। नाउ अब हम क्या करेंगे इंडिविजुअली ये तीनों का कितना परसेंट है दैट वी काउंट। सो यहाँ पे फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्या करेंगे फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशियो। फर्स्ट पार्ट रेशियो में जो फर्स्ट पार्ट है
उसका फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में 2 है, सो 2 एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में टोटल कितना है, सम है 10। सो यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म हो गया 2/10। अभी इसको हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। सो हियर वी राइट डाउन देयरफॉर इट्स परसेंटेज equals to 2/10 into 100. So यहाँ पे 0 से 0 क्रॉस हो गया. So here we have 10 into 2. 10 into 2 equals to 20%. तो यहाँ पे ये रेशियो का हमें परसेंटेज मिल गया 20. नाउ अभी सेकंड पार्ट पे चलते हैं. तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. So here we write down fraction of the second part of the ratio equals to कितना है 3 अपॉन टोटल कितना है 10. सो 3/10 ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म. नाउ फाइंड आउट इट्स परसेंटेज. सो देयरफॉर इट्स परसेंटेज इक्वल्स टू, परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. सो यहाँ पे हो जाएगा 3/10 इंटू 100. सो यहाँ पे 0 से 0 क्रॉस हो गया. नाउ वी हैव 10 इंटू 3. सो 10 इंटू 3 इक्वल्स टू 30. सो यहाँ पे हो गया ये रेशियो का परसेंटेज 30%. नाउ लेट्स मूव ऑन द थर्ड पार्ट. सो फाइंड आउट द फ्रैक्शन फर्स्ट. So here we write down fraction of the third part of the ratio equals to, थर्ड पार्ट में कितना रेशियो है, यहाँ पे है 5. तो यहाँ पे हो जाएगा 5 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमने काउंट किया था 10. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो जाएगा 10. तो इसका थर्ड पार्ट का फ्रैक्शन फॉर्म हो गया 5/10. नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. सो हियर इट्स परसेंटेज इक्वल्स टू 5/10 इंटू 100. सो यहाँ पे 0 से 0 कट हो गया. 5 10s are 50. तो यहाँ पे हो जाएगा 50%. सो यहाँ पे हमको ये तीनों जो रेशियो थे उसको हमने कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में, और उसका हमें आंसर मिला 20%, 30% एंड 50%. नाउ एक और स्टेप है टू क्रॉस चेक वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट. बिकॉज अगर हमारा आंसर गलत होगा तो वो हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे जो भी हमको परसेंटेज मिले रेशियो की उसको हमें ऐड करना है. So 20 plus 30 50 and 50 plus 50 100. ओके, सो यहाँ पे हमको टोटल परसेंट मिल गए 100. तो दैट मीन्स कि ये जो हमारे आंसर थे वो करेक्ट है, बिकॉज परसेंटेज कितने में होते हैं 100%. सो अल्टीमेटली आपको जो रेशियो गिवन है उसका आपको परसेंटेज में कन्वर्जन के बाद अगर आप उसका सम करें और वो 100% मिल रहा है तो ही आपका आंसर करेक्ट होगा, और एल्स आपका आंसर रॉन्ग होगा. सिमिलरली अगर हम फर्स्ट आंसर में देखें तो यहाँ पे 75 प्लस 25, तो ये भी हमारा हो जाएगा 100. दैट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है. तो हमेशा एक बार क्वेश्चन के आंसर लिखने के बाद एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिए वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट. In part C we have proportion 1:4. तो उसको हम कैसे करेंगे, अगेन सबसे पहले सम लिख लेंगे. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इक्वल्स टू 1 + 4. सो 1 + 4 इक्वल्स टू 5. नाउ अब हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन आफ्टर वी कन्वर्ट दैट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. So here first we write down fraction of the first part of the
रेशियो इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट में कितना है हमारे पास, वी हैव 1 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा टोटल, सो यहाँ पे हो गया 1/5। सो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, देयरफॉर इट्स परसेंटेज equals to 1/5 into 100। सो यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 और 25 ज़ा 100, तो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया 20%। अभी सेकेंड पार्ट का फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द रेशियो इक्वल्स टू 4, सेकेंड पार्ट में है 4 अपॉन टोटल है 5। सो देयरफॉर इट्स परसेंटेज equals to 4/5 into 100। सो यहाँ पे अगेन 5 1 ज़ा 5, 25 ज़ा 100 और यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 और 0 एज इट इज़। तो यहाँ पे सेकंड जो प्रपोर्शन है, यहाँ पे सेकंड जो रेशियो है उसका हमें आंसर मिल गया परसेंटेज में कितना, 80%। तो टोटल हमें मिल गए 20% एंड 80%, और ये दोनों का अगर हम सम निकालेंगे तो वो हो जाता है 100%। दैट मीन्स कि आवर आंसर इज करेक्ट। नाउ पार्ट डी। पार्ट डी में वी हैव 1:2:5। In part we have 1:2:5। सो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल फाइंड आउट कर लेंगे। सो हियर वी राइट डाउन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इक्वल्स टू 1 + 2 + 5। सो 1 + 2 + 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 8। तो टोटल हो गया हमारा 8। अब हम क्या करेंगे, टर्न बाय टर्न एक एक नंबर, एक एक रेशियो को लेके काउंट करेंगे उसके परसेंटेज। सो फॉर द फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशियो इक्वल्स टू 1, बिकॉज फर्स्ट पार्ट कितना है 1 और अपॉन में हो जाएगा 8। तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, देयरफॉर इट्स परसेंटेज इक्वल्स टू 1/8 into 100। बिकॉज परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 4 ज़ा 100 और यहाँ पे 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 25/2। सो 25/2 इसका आंसर हो जाएगा 12.5%। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रेशियो का। अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं सेकंड के लिए। सो सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द रेशियो इक्वल्स टू, सेकेंड पार्ट में कितना है 2। सो यहाँ पे 2 अपॉन डिनोमिनेटर में हो जाएगा टोटल, अपॉन हो जाएगा 8। तो अभी हम ये फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे परसेंट में। देयरफॉर इट्स परसेंटेज इक्वल्स टू 2/8 into 100। ओके, सो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, अगेन 25 4 ज़ा 100 और 4 2 ज़ा 100 और यहाँ पे 2 2 क्रॉस हो गया। सो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 25%। नाउ अब हम थर्ड के लिए काउंट कर लेते हैं। सो फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म। सो फ्रैक्शन ऑफ द third part of the ratio
इक्वल्स टू कितना है, थर्ड पार्ट है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 अपॉन टोटल कितना है 8, तो अपॉन में हो जाएगा 8। सो यहाँ पे थर्ड का फ्रैक्शन हो गया 5 अपॉन 8, देयरफॉर इट्स परसेंटेज equals to 5 upon 8 into 100. So here again 25 4s are 100 and 2 4s are 8. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 into 5 equals to हो जाएगा 125 upon 2. So 125 upon 2, उसका आंसर हो जाएगा 62.5. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे टोटल हमें कितने करने हैं, 12.5 प्लस 25 प्लस 62.5। तो ये तीनों का अगर हम सम निकालेंगे तो उसका हमें आंसर मिल जाएगा 100। दैट मीन्स कि आवर आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इज द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 to 24,500. Find the percentage decrease. तो यहाँ पे पॉपुलेशन बताई गई है एक सिटी की जो डिक्रीज हुई है और उसका हमें डिक्रीज परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं। द गिवन इज इनिशियल पॉपुलेशन इक्वल्स टू कितनी गिवन है, 25,000, दैट इज इनिशियल पॉपुलेशन। और डिक्रीज्ड पॉपुलेशन इक्वल्स टू 24,500, दैट इज डिक्रीज्ड पॉपुलेशन। So on the basis of this we have to find out the decrease percentage. So सबसे पहले कितना decrease हुआ है वो find out कर लेते हैं. So here we write down therefore decrease in population equals to इनिशियल जो है उसमें से डिक्रीज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इनिशियल कितना था 25,000 माइनस डिक्रीज होके कितना हुआ 24,500। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा डिक्रीज पॉपुलेशन दैट इज 500। तो डिक्रीज कितना हुआ 500। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड आउट द डिक्रीज परसेंटेज। सो हियर वी राइट डाउन द percentage decrease equals to percentage decrease का फॉर्मूला क्या है that we have to write down here. तो percentage decrease equals to amount of decrease upon original value. So here amount of decrease upon original value into 100. So this is the formula of percentage decrease. So यहाँ पे amount of decrease, तो यहाँ पे decrease क्या हुआ है, decrease in population, that is कितना है, हमें कितना मिला 500। तो यहाँ पे हो जाएगा 500 upon original value that means कि वो वैल्यू की जो हमें सबसे पहले गिवन है, ओरिजिन हुई थी जिसमें से, तो ओरिजिनली इनिशियली कितना था, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू को हम कंसिडर कर सकते हैं इनिशियल वैल्यू से। तो यहाँ पे कितनी है 25,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 25,000 into 100। 00 क्रॉस 00 क्रॉस 5 5s are 25 and 100 5s are 50। और यहाँ पे 5 1s are 5 and 5 2s are 10। सो यहाँ पे हमको आंसर क्या मिल गया, here we get the final answer 2। सो that means कि कितना डिक्रीज परसेंटेज हुआ 2%। सो in last here we write down therefore there is 2% decrease
in the population. Question number 4 is Arun bought a car for rupees 3,50,000. The next year the price went up to rupees 3,70,000. What was the percentage of price increase? So यहाँ पे अरुण ने एक कार परचेज की है कुछ कॉस्ट प्राइस पे और उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है, तो ये केस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, परसेंटेज इंक्रीज, तो दैट वी हैव टू फाइंड आउट हियर। तो सबसे पहले इनिशियल प्राइस क्या थी, हियर वी राइट डाउन इनिशियल प्राइस इक्वल्स टू रुपीज 3,50,000 और उसके बाद इंक्रीज हुआ, राइट, प्राइस इंक्रीज हुई, तो वो कितनी हो गई, increased price equals to rupees 3,70,000, राइट, प्राइस में इंक्रीज हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कितना इंक्रीज हुआ दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो हियर वी राइट डाउन therefore increased in price equals to क्या हो जाएगा, इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो रुपीज 3,70,000 माइनस रुपीज 3,50,000। सो 70,000 में से 50,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, रिमेनिंग इज 20,000। तो इसका इंक्रीज प्राइस कितना हो गया, रुपीज 20,000। Now on the basis of this increased price we have to find out the increase percentage. So here we write down the percentage increase equals to, इसका भी फॉर्मूला परसेंटेज डिक्रीज जैसा ही होगा, सिर्फ यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंक्रीज और अमाउंट ऑफ डिक्रीज आता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा डिक्रीज हुआ था, अमाउंट डिक्रीज हुआ, तो हियर वी हैव टेकन अमाउंट ऑफ डिक्रीज, बट यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे हम लेंगे अमाउंट ऑफ इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। See here, in all the cases you can refer this original value as a initial price or whatever initial population, initial price in context of question, जो भी initial amount आपको given है वो हो जाएगी आपकी original value into 100। So यहाँ पे क्या हो जाएगा, amount of increase कितना था, amount of increase हो गया 20,000 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितना था 3,50,000, सो अपॉन हो जाएगा 3,50,000 इंटू 100 एज इट इज़। सो यहाँ पे इंटू 100, यहाँ पे क्रॉस करेंगे, डबल ज़ीरो क्रॉस हो गया, यहाँ पे डबल ज़ीरो यहाँ पे क्रॉस हो गया। नाउ 7 5 35 और यहाँ पे हो जाएगा 45 200। Okay, so here we have 40 upon 7। So आप इसको as it is 40 upon 7 भी लिख सकते हो, परसेंटेज आप लिख सकते हो 40 upon 7%, और आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/7%। So this both answer are correct, बट अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो फर्दर, सो दैट इज वेल एंड गुड। सो इन लास्ट वी राइट डाउन देयरफॉर द प्राइस इंक्रीज्ड बाय 5/7%। Question number 5 is I buy a TV for rupees 10,000 and
sell it at a profit of 20%. How much money do I get from it? सो यहाँ पे बताया गया है कि टीवी को बाय किया है 10,000 पे, तो वो हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू ₹10,000. नाउ यहाँ पे नेक्स्ट थिंग गिवन इज प्रॉफिट परसेंटेज. यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट गिवन है, दैट इज प्रॉफिट इक्वल्स टू 20%. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट. सो अल्टीमेटली यहाँ पे हमको इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, बिकॉज यहाँ पे पूछा गया है आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. सो हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट. So ultimately here we have to find out the selling price, because जितने प्राइस में मैं सेल करूँगी उतना ही मनी मुझे मिलेगा. सो यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए ऑलवेज प्रॉफिट और लॉस होता है वो किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस पे. ऑलवेज प्रॉफिट और लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है. सो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो इसके बेस पे हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉफिट अमाउंट कितना है वो. तो यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल्स टू 20% गिवन है, तो ये 20% किसका होगा, 20% कॉस्ट प्राइस का होगा, बिकॉज ऑलवेज कीप इन माइंड कि प्रॉफिट और लॉस है वो आपका कॉस्ट प्राइस पे ही बेस्ड होगा. सो यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट इक्वल्स टू 20% ऑफ 10,000. सो अल्टीमेटली यहाँ पे मुझे प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा 20% ऑफ 10,000. सो यहाँ पे 20% को मैं रिमूव करूँगी, तो परसेंट को रिमूव करूँगी तो मैं डिनोमिनेटर में ऐड कर दूँगी 100, और ऑफ 10,000 उसका ऑफ 10,000 का हो जाएगा यहाँ पे इंटू 10,000. ओके, सो यहाँ पे क्रॉस करें, 00 क्रॉस हो गया, 2 1s are 2 और कितने ज़ीरो हैं, 1 2 एंड 3, तो लास्ट में 3 0 ऐड करेंगे, 1 2 एंड 3. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा ₹2,000 का, राइट. तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट अमाउंट हमें मिल गई, दैट इज 2,000. नाउ वी हैव कॉस्ट प्राइस, वी हैव प्रॉफिट अमाउंट, तो ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस. सो हियर सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट अमाउंट. सो कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस गिवन इज ₹10,000 प्लस प्रॉफिट अमाउंट हमें कितना मिला, ₹2,000. सो 10 + 2 12,000. सो सेलिंग प्राइस हो गई हमारी 12,000. सो दैट मीन्स कि सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 12,000. सो इसके बेस पे हम लास्ट में सेंटेंस लिखेंगे, दस ऑन सेलिंग the TV I will get ₹12,000. बिकॉज अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मुझे कितने मनी मिलेगी, मुझे हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट. सो बाय सेलिंग द टीवी आई विल गेट ₹12,000.